When you dissolve in water, we get hydrochloric acid. So water dissolve polar gases are highly soluble in polar solvent like water. So other examples are SO2. SO2 is also soluble in water. It is polar, right? Then Yes. Yes. SO2. Then you can take example ammonia, NH3. polar solvent. So all polar gases are soluble in water, highly soluble in water. But class, if you talk about the non-polar gases, for example O2, या फिर Cl2, या फिर H2, या फिर N2, these gases are non-polar, right? So these gases, या फिर CO2, these gases are less soluble in water. ये gases क्या होते हैं water में कम soluble है, because they are non-polar and water is a polar solvent. So this is basic thing, मतलब which gases are soluble in water and which gases are less soluble in water. So water dissolve easily which gases which are polar in nature, okay, and gases which are less polar, or sorry, gases which are non-polar are less soluble in water. ये basic है, अपने टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ये पार्ट, ये समझा आपको? Yes. Yes, Yes, sir. sir. This is very basic. हाँ. Plus now solubility of gas in water या फिर any solvent depends on two things important. There are many factors, but the two important factors are, one is temperature, other is pressure. The solubility of gas in liquid depends on two things, temperature and Pressure. so temperature and pressure. So let us see first effect of temperature, और दूसरा देखेंगे बाद में इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ओके, तो क्लास सबसे पहले एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, बिकॉज दैट इज मोर रिलायबल एंड फॉर जेडबल एंड नीट वी रिक्वायर दैट. सो इफ यू टेक एनी गैस, ठीक है, dissolved in any solvent, for example you dissolve SO2 an ammonia gas in water, or CO2 gas in water, or whatever whichever gas you dissolve in any solvent. When you dissolve any gas in solvent, प्लस क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, राइट? Solution. Solution. क्लास व्हाट रिवर्सिबल एरो मींस? Reversible reaction है. रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. And class this reaction in forward direction, I hope you understand forward and backward direction. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Heat is evolved, the reaction is exothermic. 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 तो क्लास अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है, Sir, हर एक reaction all gases dissolve in solvent is exothermic reaction. आप बोलोगे क्यों? तो I can explain that with the help of chapter thermodynamics. sir, सब reaction reversible रहते हैं. डिसोल्यूशन नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, एक्सेप्शन वाले को बताता हूँ. हाँ, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर आर रिवर्सिबल. Reversible. क्लोज कंटेनर में होगा तो ही रिवर्सिबल होगा. क्या क्या? क्लोज कंटेनर में रहेगा तो ये रिवर्सिबल होगा ना. वो किस में होता है? गैसेस के केस में बच्चा. अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और प्रोडक्ट भी गैसियस है तो कंटेनर क्लोज चाहिए, ठीक है, बताता हूँ, नो प्रॉब्लम. रिवर्सिबल एरो देने का रीजन बताता हूँ मैं. तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, राइट? बता रहे हीट क्या हो रहा है? Evolve. Evolve. रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बता रहे Exothermic. Yes. Yes. इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? Forward. Forward. प्लस अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो द हीट मस्ट बी इवॉल्व, राइट? हीट मस्ट बी इवॉल्व, हीट इवॉल्व होना चाहिए तब एक्सोथर्मिक है. तो हीट इवॉल्व कब होता है? एट लो टेम्परेचर इजीली होता है या हाई टेम्परेचर इजीली होता है हीट इवॉल्व? Low temperature. Low temperature. So class, if you want gas to dissolve in any solvent, the temperature must be high or low? Low. 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 Solubility of, हम लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे, solubility of gases in liquid increases with decreasing temperature. बराबर है? Solubility Yes. of gases Yes. in liquids increases, बराबर? With decreasing in temperature. Decreasing temperature. मतलब उल्टा बोला तो? Decreases with increase in temperature. Very good. Decreases with increasing temperature, right? Yes. Yes. मैं एक ही स्टेटमेंट लिखता हूँ, दूसरा आप अंडरस्टूड है, ठीक है? तो solubility of gases in liquid increases with decrease in temperature. ना दूसरा एक्सप्रेशन जो अपने बुक में है, ठीक है, वो देख लेते हैं. तो बस समझो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने समझो कोई सॉल्वेंट लिया है, सपोज दिस इज वाटर, राइट?
फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई हीट द वाटर, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बहुत ज्यादा बढ़ेगा या निग्लिजिबल बढ़ेगा? सर नेग्लिजिबल बढ़ेगा, बाकी Negligible बढ़ेगा। Negligible. पेपर में उठ जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ, तो वाटर का वॉल्यूम में Yes. ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास समझो ये वाटर है आपके, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, दिस वाटर। एंड क्लास सपोज दिस वाटर कंटेन सम डिसॉल्व ऑक्सीजन, इस वाटर में क्या है? डिसॉल्व Oxygen. ऑक्सीजन। तो क्लास यहाँ पे डिसॉल्व, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, राइट? तो क्लास इफ यू हीट दिस सॉल्यूशन, तो क्लास अभी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature. Temperature. So at low temperature gas require less volume, right? Less volume. But Less at high volume. temperature gas require, More volume. और वॉल्यूम। तो क्लास वाटर का वॉल्यूम तो ज्यादा चेंज, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो वाटर का वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, राइट? पर जो अंदर Yes. ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज हो रहा है। No. Yes. और किसी और तरीके से बोलता हूँ, क्लास वाटर के पास भी, वाटर मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, यस मॉलिक्यूल का, Yes. राइट? किसका ज्यादा एनर्जी Yes. ज्यादा है? वो गैस के पास या लिक्विड के पास? Gas के पास। गैस के पास। गैसेस के पास। तो क्लास gaseous molecules will collide faster. Yes. Yes. And what will happen with increase in temperature? Kinetic energy will increase, and the chances that gas molecule can escape will become high, right? More. Yes. Yes. More. बस क्या Yes. होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो डिसॉल्व हुआ था ऑक्सीजन गैस पानी में, वो क्या हो जाएगा? पानी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो क्लास क्या होगा? सोलिबिलिटी बढ़ रहा है, कम हो Solubility रहा है? कम होगा। कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है क्लास, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विच लॉ? चार्ल्स लॉ। हाँ, क्लास सिंपल चीज है, जब आपका वाटर है अंदर, ओके, तो क्लास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है लिक्विड स्टेट में, तो क्लास वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स है, क्लास क्या बोलते हैं स्पेस को हम लोग? वॉइड्स। Voids. उस वॉइड्स में क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, राइट? गैस के मॉलिक्यूल्स है। Oxygen. Yes. Yes. तो क्लास जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका प्रॉब्लम क्या होगा? देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, राइट? Yes. एंड दे विल ट्राई टू पुश, बाजू के मॉलिक्यूल को पुश करने की कोशिश करेंगे, दे ट्राई टू हैव मोर स्पेस, बिकॉज वॉल्यूम, क्योंकि उनका वॉल्यूम भी बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ा तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए ना, गैस के लिए वॉल्यूम ज्यादा लगेगा, और उस टेंडेंसी में क्या Yes. होगा? बिकॉज ऑफ हाई Yes. काइनेटिक एनर्जी दिस मॉलिक्यूल्स में एस्केप इन द फॉर्म ऑफ Escape. व्हाट? Gas. बबल्स। तो क्या होगा? हाँ, गैस। तो क्लास क्या होता है, अगर अपना इनिशियली अगर बीकर में वाटर है और थोड़ा सा भी हल्का गर्म कर दो ना, तो थोड़े छोटे बबल्स, स्टार्टिंग में बबल्स आने शुरू होते हैं, राइट? Yes, sir. बॉइलिंग की Yes, बात नहीं कर sir. रहा, स्टार्टिंग में ही। तो मतलब वो बबल किसके होते हैं? अंदर जो डिसॉल्व गैस होते हैं ना, उसके बबल्स होते हैं। या फिर आपके देखो टेस्ट बीकर, आपके कंटेनर के साइड में बबल्स दिखते हैं आपको जमा होना, यस सर, यस। Yes. Yes, sir. बस वो क्या हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बराबर है? तो Yes, solidity sir. बढ़- हाँ? तो क्लास solidity बढ़ रहा है, कम हो रहा है? प्लीज किसका माइक चालू है? बंद करो। हाँ हाँ, क्लास सॉलिडिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है गैस का टेम्परेचर बढ़ने से? कम हो रहा है। Come हो on. रहा है। सर, दोनों भी एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगा? कम हो रहा है। होएगा। कम होगा। क्लास एक पॉइंट और जो अपने बुक में नहीं, अगेन JEE। क्लास समझो हमारे पास बीकर में वाटर है, राइट? एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी ना घर पे कर भी सकते एक्सपेरिमेंट। तो वाटर नहीं लेते हम लोग, क्या लेते हैं समझो? कोक लेते हैं। कोक मालूम है ना, सब लोग को मालूम है, सबको मालूम है कोक, ठीक है? कोका कोला। या फिर सोडा लेते हैं, सोडा वाटर सबको मालूम है। Yes. 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 क्लास व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? वाटर प्लस Carbon dioxide. Carbon dioxide. तो वाटर अंदर दो चीज है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है? तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाँ, ये ढक्कन ओपन रखते हैं हम लोग। अरे यार, पूरा चला गया। हाँ, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। तो प्लस कभी आप ये करके देखो घर पे, वाटर, सोडा वाटर लो और ऊपर से अपना पिंच ऑफ सॉल्ट डालो। क्या देखा है किसने कभी करके ऐसा? पिंच ऑफ सॉल्ट डाला तो क्या होता है? वो ऊपर आने लगता है, Bubbles वो आते ऊपर हैं। आते हैं, बबल्स आते हैं मतलब। रैपिडली ऐसा ना, बहुत जोर जोर से फटाफट बहुत सारे बबल्स बाहर आना शुरू होते हैं सॉल्यूशन से। देखो कभी ऑब्जर्व करो ये। Yes. तो क्लास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? बाहर एस्केप हो रहे हैं, राइट? RS के Yes. हाँ. सर एक्चुअली मेंटोस के साथ भी किया तो वैसे सेम आता है। वही होता है एग्जैक्टली सेम। हाँ। बराबर, मेंटोस भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्ट बोला, तो क्लास ये क्यों होता है बताओ मुझे, इसका रीजन बताता हूँ आपको। तो क्लास यहाँ पे सॉल्ट क्या? NaCl. तो क्लास सॉल्ट क्या है? NaRA. सॉल्ट क्या है? सॉलिड, राइट? Yes. Yes.
तो क्लास ऑलरेडी अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, राइट? यस Yes. प्लस किसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, गैसियस सॉलिड के पास या सॉलिड सॉलिड के पास? Yes. gaseous Yes. solute, Gaseous. gaseous. Yes. हाँ, प्लस मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, राइट? यस Yes, sir. लेस द एनर्जी। More More stability. More stability. तो क्लास जब आप सॉल्ट डालोगे पानी में तो क्लास सिस्टम ज्यादा स्टेप, जब सॉल्ट पानी में डालोगे, राइट, तो सॉल्ट्स आर मोर सोल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू गैसेस। वापस बोलता हूं मैं, सॉलिड सॉल्ट्स आर मोर सोल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू गैसेस। Gases. यस हाँ, तो क्लास क्या होगा, जैसे आप सॉल्ट डालोगे तो क्लास जो लेस स्टेबल है वो मॉलिक्यूल्स किसके, गैस के, क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, राइट? Marginal. उस वॉल Yes. स्पेस में, उस वॉल स्पेस में कौन रहेंगे, आपके सॉल्ट के पार्टिकल, NaCl. Na+Cl-। तो क्लास यहाँ पे सिंपल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, Displacement. Displacement. मोर सोल्युबल मोर स्टेबल कैटायंस एंड आयंस, लेस स्टेबल गैसेस को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। Displace Displace करते हैं. करते. ये समझा या किसी और तरीके से बताओ आपको मैं? समझा sir. नो सर समझा ओके, Yes sir. क्लास यस माय क्वेश्चन इज, अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में, सॉरी सोल्यूशन में, अगर आप सॉलिड डालोगे तो उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, गैस का सोल्यूशन में, गैस का सोल्यूबिलिटी बोल रहा मैं, सोल्यूशन में बढ़ेगा कम होगा, गैस का कम सोल्यूबिलिटी होगा. कम होगा कम होगा. क्योंकि गैस बाहर चला जाएगा और उसका प्लेस वो आपने जो सॉलिड ऐड किया वो ले लेगा, राइट? Solid लेगा. Yes. सोल्यूशन में से गैस का क्वांटिटी कम होता जाएगा, तो दैट इज द सेकंड थिंग। ओके, सर डिपेंड करेगा कि सॉलिड वो सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए. हाँ डिजोल्व होना चाहिए, डेफिनेटली डिजोल्व होना चाहिए, हम लोग इसलिए सॉल्ट बोल रहे हैं, सॉल्ट पानी में सोल्यूबल होते हैं। Yes sir. हाँ, इसलिए वो Yes, sir. वाटर, यहाँ पे वाटर है ना, इसलिए वो एग्जांपल लिया है। हाँ ठीक है, क्लास समझा? क्लास अभी नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ व्हाट, प्रेशर। Pressure. प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा इजी है। तो क्लास इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ, सिंपल लॉ, एकदम छोटा सा लॉ है। तो क्लास हमारे पास एक सिलेंडर है, अरे टेक्स, हाँ सॉरी, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने लिया है कोई सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया, समझे फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड लिया हम लोगों ने, से फॉर एग्जांपल वाटर, तो ये वाटर है अंदर बीकर के अंदर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो दिस इज वाटर, से फॉर एग्जांपल फॉर एनी सॉल्वेंट वाटर। हाँ क्लास यहाँ पे हमने लिया है ऊपर कोई तो गैस, एनी गैस, से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस लिया हम लोगों ने, CO2 गैस या फिर या मीथेन गैस, एनी गैस विल डू, चलो कोई तो गैस लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये गैस ऊपर, एंड अबाउट दैट आई फिट द पिस्टन। सबको पिस्टन शायद मालूम है, Yes sir. मालूम है पिस्टन? Yes sir. Yes. Yes. हाँ, सो वी फिट हियर द पिस्टन, हम पिस्टन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये पिस्टन अपना लगा दिया। हाँ, तो बस जैसे आप पिस्टन को नीचे ढकेलोगे क्या करो, प्रेशर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो गैस बढ़ा का? रहे हो. बढ़ा रहे. We are increasing the pressure, right? So if you increase the pressure, what will happen? The gas will dissolve more in water or will less in water? More in More in water. water. More in water. So water, the solubility will increase in water, ठीक है? Yes. अगला हम बोल सकते हैं Yes. कि solubility of gas in liquid is directly proportional to the Pressure. pressure of gas Blood pressure. above the liquid. Pressure of gas above the liquid. तो क्लास लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर जितना ज्यादा होगा, राइट, लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड के ऊपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा लिक्विड के ऊपर, उतना सॉलिबिलिटी क्या होता जाएगा, बोलो, बढ़ता जाएगा। जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। हेलो, आवाज आ रहा है? तो बस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड, ठीक है। हाँ क्लास, एक कंडीशन है यहाँ पे, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। ओके बच्चों लोग, आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes Yes sir. sir. यस सर Solubility of gas is directly proportional to pressure of gas above the liquid at given temperature. Temperature. Okay. So class, if you remove this proportional sign, so S is equal to some constant K, right, Constant. into P. So class, this constant is for Henry's law. That's why it is called as a Henry's constant, KH.
इस के हम लोग केज बोलते हैं, एंड केज इज कॉल्ड एज द हेनरीज कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? Henry's constant. मतलब हेनरीज लॉ अपने टेस्ट में बहुत ज्यादा बेसिक है, पर इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हेनरीज लॉ, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. so the things are given in clear manner in NCERT book. तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा जब हम एमसीक्यूज करेंगे हेनरीज लॉ के. ठीक है. अपने Yes, yes, बहुत sir. बेसिक हेनरीज लॉ है एक्चुअली. ऐसे ये हेनरीज लॉ जेडबल में यूज होता ही नहीं, हमने जो लिख रहे हो कभी नहीं होता. ठीक है. तो आई विल शो दैट हेनरीज लॉ आल्सो. तो क्लास ये अपना बुक का, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट. तो यहाँ पे केज को क्या बोलते हैं हम लोग? Henry's constant. Henry's constant. तो क्लास वैल्यू ऑफ केज डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. Solvent. ओके. बस नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखो, ये लो, ठीक है. एक बच्चे लोग ना इधर. हेलो बच्चे लोग. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्लास में जो था, आपके एक बीकर में हमने लिया है वाटर, एक बीकर में लिया बेंजीन. ठीक है. मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. इसमें डाला हमने, NaCl और इसमें डाला हमने NaCl. क्या दोनों में NaCl सेम क्वांटिटी में डिजोल्व होगा नहीं होगा? No. क्या वाटर में NaCl बहुत डिजोल्व होगा, बेंजीन में शायद होगा भी नहीं. होगा भी नहीं. Yes. तो नेचर ऑफ Yes. सर क्यों नहीं Solvent. Solvent. बोलो. सर बेंजीन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. Non-polar. आपने देखा आयनिक कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड इज आल्सो हैविंग वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? NaCl. तो the ionic compound having high dielectric constant get dissolved in solvent which is also having high dielectric constant. एक rule है, like dissolve like. Like dissolve like. Yes, sir. Yes, sir. dissolve like. तो बेंजीन नॉन पोलर है, तो उसमें NaCl डिसॉल्व शायद ना के बराबर होगा या होगा भी नहीं. ठीक है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ओके. ऑन सेकंड फैक्टर ऑन Yes, which sir. constant depend is nature of solute, right? Plus in water I dissolve NaCl and in water I dissolve acetic acid. Will both dissolve equally? No. नहीं. NaCl dissolve completely, right? And acetic acid dissolve partially, because this is strong electrolyte and this is Weak electrolyte. nature of solute. and तीसरा फैक्टर बताओ क्या लगता है आपको होना चाहिए? बहुत सिंपल है, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, पर हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करें लॉ के एट गिवन टेम्परेचर, राइट? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Yeah. Temperature. temperature. So if you carry out experiment at different temperature, Henry constant will also change. Got it everyone? Yes, sir. एक Yes, बार sir. क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफाइन हेनरीज कांस्टेंट. तो क्लास लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. डिफाइन हेनरीज कांस्टेंट. तो क्लास हम बहुत सिंपल एक काम करेंगे, कंडीशन ले लेंगे. लेट प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड इज 1 बार. कितना लेते हैं? 1 बार. 1 bar. आपको बार पसंद नहीं, लो आप 1 एटमॉस्फेयर, आपको जो अच्छा लगे. आपके बुक में 1 बार लिया है इसलिए 1 बार. ठीक है. You can take anything. Unit pressure, right? It can be 1 bar, it can be 1 atmosphere, it can be 1 Pascal, whatever. It should be unit pressure. Let pressure of gas accordingly, the value of units of kH will change. Okay. So pressure of gas be 1 bar. So class let pressure of gas कितना? 1 bar at given temperature. So if I put value of P equal to 1, class क्या होगा? S is equal to क्या होगा बोलो? KH. KH. So Henry's constant is defined as solubility of gas in liquid when pressure above the liquid is 1 bar. 1 1 bar. bar. When pressure of gas above liquid is 1 bar. 1 bar. Good. Any doubt here? No. Okay. So class, this is everything about what? Solubility of gases in liquid. Liquid. Okay. क्लास एक चीज और है, मैं 1 मिनट के लिए ना ये स्क्रीन शेयरिंग पॉज करता हूँ. I'll take open the textbook. I'll show one more thing. अभी solubility of solids in liquid वो भी देखते हैं हम लोग. That is very simple. It is just based on the observations. Give me 1 minute. I'm opening the textbook. Solution derivative, chapter number 2. Okay, first I'll share the screen first.
एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है ना? हाँ, रिज्यूम हो गया। स्क्रीन शेयरिंग रिज्यूम। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हेलो स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट सॉल्यूशन को लेके थे, तो ये बहुत ज़्यादा चला गया क्या आगे? सेकंड चैप्टर इटसेल्फ। ओके, हाँ, ओके, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ओके, वो देखते हैं। एक सिंपल ग्राफ है क्लास, सिर्फ ग्राफ आपको, ये ऑब्जर्वेशंस है तो आपको बाहर करना है सिर्फ देख के, मतलब कुछ एग्जांपल याद रखना है, बाहर भी नहीं बोल सकता मैं। हाँ क्लास, ये ग्राफ सबको दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes. यस तो क्लास जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, NaCl का सॉलिबिलिटी पानी में ज्यादा बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, कम हो बढ़ रहा रहा है? है, कम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है पर स्लोली बढ़ रहा है, राइट? इट इज नॉट इंक्रीजिंग रैपिडली। यस मेरा पेन का पॉइंटर दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, KCl sir. का, if you see the solubility of KCl, see this is KCl, if I take the solubility of KCl, तो टेम्परेचर 20 का 40, 40 का 60, 60 का 80, 80 का 100, तो the quantity solubility मतलब amount of KCl dissolved in 100 gram of water is not increasing in that proportion, right? तो ज्यादा Yes. टेम्परेचर बढ़ने से solubility ज्यादा नहीं बढ़ता। क्लास NaCl का solubility तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो, NaCl के solubility को फर्क नहीं पड़ता, बराबर है? Yes. सपोज Yes, इस वैल्यू इज 45, यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंटर? Yes, sir. 20 डिग्री पे भी ऑलमोस्ट 45 ही है, 40 पे भी ऑलमोस्ट Yes. 45 है, 60 डिग्री पे भी Yes. ऑलमोस्ट 45 है, 80 पे भी ऑलमोस्ट 45 और 100 पे भी ऑलमोस्ट 45, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो NaCl का सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ता, मोस्टली नहीं बढ़ता। KCl का बहुत कम, स्लोली बढ़ता है, राइट? तो ऐसा कौन सा सॉलिड का सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता है? KNO3 KNO3. देखो, एट 0 डिग्री इट इज सपोज से फॉर एग्जांपल 20 है, तो एट 100 डिग्री इट इज मोर देन 240, 230 के आसपास है, राइट? यस KNO3 बाद Yes. में, तो अदर इज KNO3, उसके नीचे NaNO3। NaNO3 ठीक है, तो इनका सॉलिबिलिटी क्या होता है टेम्परेचर के साथ? क्या हो रहा है? रैपिडली सर बढ़ता ऐसा है। क्यों हो रहा है? सर इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नहीं, हाइड्रोबॉन्डिंग नहीं है, आपको बताता हूं। दैट इज अगेन दैट टॉपिक इज इन चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ओके, so how, okay, you learn a solid state. Yes sir. When solid state, Yes. you learn the different types of ionic solids. yes sir Yes, sir. मैं डिटेल में नहीं जाता, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है? कैटायंस और आनायंस आर हेल्ड बाय अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। yes Yes. ओके, सो अगर आपको उनको सेपरेट करना है, क्या करना है? उनको सेपरेट करना है, किसको? कैटायंस एंड वर्किंग स्टेट में डालना पड़ेगा। आनायंस को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। yes Yes. ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl सॉलिड है, मुझे इसको Na प्लस गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन बनाना, राइट? हाँ, मेरे पास कितने NaCl मॉलिक्यूल्स हैं? समझो 1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 mole. हाँ क्लास, देखो एक चीज याद रखो, JEE के लिए स्पेशली, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम लोग Formula units. फॉर्मूला यूनिट्स। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला यूनिट्स है? 1 मोल 1 फॉर्मूला mole यूनिट। formula units 1 mole. सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, 6.022 into 10 raised to 23 23. मॉलिक्यूल्स अगेन से फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl सॉलिड। तो प्लस हमें उसको गैसियस, कैटायंस और आनायंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ेगा। supply करना पड़ेगा So whatever amount of heat you supply to convert 1 mole of ionic compound into gaseous ions is called as a lattice enthalpy. क्या बोलते हैं इसको? Lattice enthalpy. Lattice enthalpy। Enthalpy. Lattice enthalpy. हाँ, अगला दूसरी सर चीज फिर से होता है, रिपीट कर सकते हो lattice enthalpy? हाँ, the amount of heat which is need to be supplied to convert 1 mole of formula units of ionic compounds into gaseous ions. या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, किसके? आयनिक कंपाउंड के, राइट? कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, हमेशा एट रूम टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट। तो आपको क्या करना है? कैटायंस आयन को सेपरेट करना है। क्लास, द फोर्सेस आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? Yes. टू मेक दिस फोर्सेस वीकर वी नीड टू सप्लाई
एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको इतना एनर्जी सप्लाई करना है कि क्या हो जाए, कटायन आयन सेपरेट होकर क्या बन जाए, गैसियस स्टेट में चले जाए। Gaseous state. हाँ, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आपको गैसियस स्टेट में आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है, इसको व्हाट, लैटिस एंथैल्पी lattice enthalpy. enthalpy. या फिर क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी इज सफिशिएंट। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा, LH, ये इसका तरीका लिखने का, लैटिस एंथैल्पी। ओके, हाँ क्लास, अब कोई आयनिक कंपाउंड बोलोगे फिर NaCl को इतना हीट करना पड़ता है, राइट, NaCl को। तो NaCl पानी में इतने जल्दी कैसे डिसॉल्व होता है? तो क्लास बहुत सिंपल है। तो क्लास NaCl जब पानी में डालते हैं तो क्लास Na और Cl को सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलो, लैटिस एंथैल्पी चाहिए, राइट। Lattice enthalpy. Yes. चलो, Yes. नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, हम लोग जो सीख रहे हैं उससे कुछ रिलेशन नहीं, फिर भी समझ लो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो क्लास आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। Yes. 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 तो क्लास एक क्वेश्चन है, तो इसका लैटिस एंथैल्पी क्लास वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि आप बाहर से Positive. सप्लाई कर रहे हो। Positive. आप बाहर से Positive. सप्लाई कर रहे हो। पॉजिटिव मतलब क्या, आपको इतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, Apply करना पड़ेगा. अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वैल्यू मालूम नहीं इसका कितना है NaCl का लैटिस एंथैल्पी, नहीं तो मैं लिख देता। ठीक है, तो दूसरा है NaCl आपको जब पानी में डालते हो, NaCl को किस में डालते हो, पानी में, तो प्लस Na प्लस आयंस गेट इमीडिएटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 chlorine molecule. 6 water molecules, right? NaCl Yes. gets class from which side? Water is a polar, so from which side, positive pole or negative pole? Negative. Negative pole. नेगेटिव पोल। क्लास 11 में सीखा था हम लोगों ने, शायद मैंने सीखा था आयन डायपोल इंटरेक्शन, या किसी और ने सिखाया रहेगा आपको, आयन डायपोल इंटरेक्शन, राइट। Yes. प्लस ये Yes. इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, तो प्लस, हाँ प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल बॉन्डिंग हो रहा है, Yes. पार्शियल बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, Yes. मतलब एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। प्लस प्लस Cl माइनस के साथ भी वही होता है। तो प्लस कौन से साइड से, फ्रॉम हाइड्रोजन साइड, राइट। Hydrogen. Hydrogen. यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, Positive side. Positive. तो 6 होते हैं, मैं 6 में पूरे नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो प्लस Chlorine में सिर्फ बाजू में 6 आएगा ना? 6 आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोला मैंने, यहाँ पे पूरे नहीं लिख रहा मैं, 6 है, मैं 4 ही ड्रॉ किया, ठीक है। Yes sir. तो 6 है, हाँ। तो प्लस जब इंटरेक्शन होता है तो याद रखो, जब कोई भी दो चीजें अब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, राइट। Yes. प्लस Yes. तो Na प्लस ने जब 6 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड किया और Cl माइनस ने जब 6 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड किया, तो टोटल जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी Enthalpy ऑफ of hydration. 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 हाइड्रेशन। और क्लास वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। Negative. Negative. प्लस नेगेटिव मतलब क्या, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। Release Release होता होता है. है. Release. तो प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, NaCl पानी में हाईली सोल्यूबल है, राइट। Yes. Yes. हाँ, प्लस का रीजन है Na और Cl को सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे कई गुना एनर्जी हाइड्रेशन में रिलीज होता है। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. जितना Na प्लस और Cl को सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन में Release होता रिलीज है. होता है। Release होता है. प्लस वो रिलीज एनर्जी Na और Cl को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, बराबर है। तो Yes. Yes. NaCl is soluble in water easily. Plus AgCl, क्लास ये भी सॉल्ट है, राइट। पर AgCl Yes. पानी में सोल्यूबल नहीं। JW का क्वेश्चन है क्लास, इसका रीजन बताता हूँ। AgCl का लैटिस एंथैल्पी, आपको Ag और Cl को सेपरेट करने का जो एनर्जी लगेगा, लैटिस एंथैल्पी, और जब Ag प्लस और Cl माइनस का हाइड्रेशन होगा तो रिलीज होने वाला कौन सा एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Hydration. Sun. तो बस ये वैल्यू रिलीज कम होता है और यहाँ पे एनर्जी आपको ज्यादा लगता है। तो ये यहाँ पर भी पॉजिटिव आना चाहिए ना? कहाँ पे, नहीं सर, समझा सर. हाइड्रेशन जब Ag प्लस और Cl माइनस को वाटर सराउंड करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, राइट। यस सर, जितना समझा. एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना एनर्जी लैटिस एंथैल्पी से कम पड़ रहा है, राइट। हाँ, क्लास आपको सप्लाई करना पड़ रहा है ज्यादा पर आपको मिल रहा है कम, तो क्लास आयन सेपरेट हो पाएंगे, नहीं पाएंगे। नहीं हो पाएंगे. नहीं हो नहीं हो पाएंगे. क्लास AgCl पानी में सोल्यूबल नहीं है। नहीं है. क्लास में कोई नहीं आप और चैप्टर में कोई और MCQ में सीखोगे, याद रखो, तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल नहीं है तो उसका रीजन क्या होता है, उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। किससे, उसके कम होता है. लैटिस एंथैल्पी से। हाँ, प्लस साइन का आप ध्यान दो, प्लस माइनस का मतलब क्या था, प्लस मतलब आपको सप्लाई करना है और माइनस मतलब आपको उसका उतना रिलीज हो रहा है, राइट। Yes. Yes sir. जो रिलीज हो रहा है वो आपको जितना चाहिए उससे कम है, किसमें, AgCl में।
और NaCl में जो रिलीज हो रहा है जो आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो क्लास क्या होगा, NaCl पानी में बहुत इजीली सोल्यूबल है, AgCl पानी में इजीली सोल्यूबल। नहीं नहीं है। तो थोड़े टाइम पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको मिला कि सब में सेम क्यों नहीं, अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर एक क्रिस्टल का क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी अलग Different. होता है, वाटर के साथ अलग टाइप से इंटरेक्ट करता है, एनर्जी होने रिलीज होने वाला एनर्जी अलग होता है, हर एक क्रिस्टल का रिलीज होने वाला एनर्जी अलग होता है और उसको तोड़ने के लिए लगने वाला एनर्जी अलग होता है, इसलिए हर एक क्रिस्टल का हर एक आयनिक कंपाउंड का वाटर सोल्युबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सर अरे टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा ना, अलग अलग रहेगा, नो डाउट। हाँ तो क्लास बहुत सारे फैक्टर और भी है, तो क्लास सर एक बार फिर से बताओ, नहीं समझा। क्या बताओ। सर सॉल्युबिलिटी का कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है? मतलब एक ही फैक्ट लैटिस एंथैल्पी एक फैक्टर नहीं बचा, वो बहुत सारे फैक्टर है, साथ में कंबाइन करके देखना पड़ेगा, तो उसका वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है ना, तो उसमें सब फैक्टर देख के मतलब क्रिस्टल का स्टेबिलिटी कितना है, उसका लैटिस एंथैल्पी कितना है, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना है, ओके उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, FCC है, BCC है या फिर सिंपल क्यूबिक है, तो सब फैक्टर कंबाइन करके जब नेट रिजल्ट आता है वो डिसाइड करता है कि वो आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल ज्यादा होगा या फिर कम होगा, उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा या फिर कम भी होगा, कुछ कुछ सॉलिड का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम भी होता है, ऐसे हार्डली कोई सॉलिड है, मुझे उसका नाम भी वैसा कोई सॉलिड मेरे मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे मालूम भी नहीं है, देखता हूँ मैं अगर कोई सा सॉलिड है भी नहीं है नहीं है, तो मोस्टली क्या होता है या तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बहुत कम बढ़ता है या तो बहुत रैपिडली बढ़ता है, राइट। यस सर। कुछ कंपाउंड जैसे KNO3 कहाँ से आ गया अपना वो गया, हाँ कुछ कंपाउंड है जैसे KNO3, दूसरा कौन सा NaNO3 या फिर KBr, दिख रहा है आपको ये सब, इनका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ रैपिडली बढ़ रहा है, पर कुछ सॉल्ट है जैसे NaCl KCl, उनका सॉल्युबिलिटी पानी में टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं बढ़ रहा। क्लास देखो मुझे था NaCl रूम टेम्परेचर पे अगर आयंस ऑलरेडी सेपरेट हो रहे हैं, राइट, Yes. तो क्लास आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं ना, नो तो यहाँ पे No. टेम्परेचर ज्यादा काम, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, बराबर है। Yes. यस प्लस KNO3 में शायद क्या हो सकता है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो सकता है शायद, तो एट लो टेम्परेचर K और NO3 जल्दी सेपरेट नहीं हो पा रहे, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, वो ज्यादा सेपरेट हो पा रहे हैं बराबर इजीली, यस Yes. मतलब ऐसा कुछ फैक्ट है। तो प्लस आपको ना सिर्फ ना 4 लाइन बाहर करना है, इसमें मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, ये पैराग्राफ, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी देखो ये देखो ये 4 लाइन बस, दैट्स इट। स्लाइटली बराबर है, कौन कौन स्लाइटली है, 3 है ना, याद रखो 3 बाहर करो, कौन NaBr NaCl एंड KCl। हाँ प्लस 3 रैपिडली है, कौन 3, हाँ KNO3 KNO3 NaNO3 KBr और मैंने बोला था डिक्रीज वाला देखो मिल भी गया, कौन सा सोडियम सल्फेट, उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम हो जाता है। प्लस ये 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस बाकी सब ना जो मैंने बोला ना वो अरे सब Na2SO4 का कैसा है? वो देखना पड़ेगा, उसका फैक्टर में चेक करता हूँ, बता दो आपको उसके कौन से फैक्टर्स के पे काम करते हैं। तो देखो इसके लिए डेटा लगेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा मुझे देखना पड़ेगा वो डेटा, मतलब ठीक है, ये बता देख के पक्का बता दो आपको, मतलब क्या फैक्टर्स उसके मतलब Na2SO में कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर होता है ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। यस सर। ओके ये समझा आपको सॉल्युबिलिटी। यस सर ओके तो क्लास दिस इज एवरीथिंग अबाउट योर चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने बहुत डिटेल में हुआ क्लास, आपने देखा रहेगा तो डिलीटेड पोर्शन देखो बोर्ड ने अब ये भी रिलीज भी किया, राइट। हाँ क्लास ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। प्रेशर यस यस हाँ तो क्लास प्रॉब्लम क्या होता है, आप बात करते हो, अगर आप बात कर रहे हो कौन से गैस की, अमोनिया की, अगर आप देखते हैं ये समझो आपका ये सॉल्युबिलिटी है और ये प्रेशर है, राइट, सॉल्युबिलिटी और ये प्रेशर है, लाइक सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो क्लास आपका ग्राफ कैसे जाना चाहिए बोलो, स्ट्रेट लाइन। Straight line. और क्लास कुछ गैसेस में फॉर एग्जांपल अमोनिया में ये गैस ऐसा जाता है, ग्राफ ऐसा जाता है, क्लास कैसे आ रहा है बोलो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो क्लास इसका रीजन बहुत सिंपल है, अमोनिया पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो प्लस NH4 प्लस एंड OH माइनस। प्लस दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है कार्बोनिक एसिड,
H2CO3, तो आपको पोलर निकलता है H प्लस आयन साइन, HCO3 माइनस आयन। तो क्लास जो भी गैस क्या करते हैं वाटर के साथ, क्या करते हैं बोलो, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट उनके लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होगा। तो आप अगर आप सीटी की बात कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के, तो प्लस ये दो गैस याद रखो, इन दो गैसेस के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा कोई भी गैस जो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्लास मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल SO2, anybody know SO2 gas react with water, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड गिव्स यू, H2SO4 H2S2 नहीं बच्चे लोग, H2SO3 देता है, H2SO2 देता है, सल्फ्यूरस एसिड। ये SO4 नहीं, H2 ये भी एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लास इस Sulfurous गैस के लिए acid. भी, इस गैस के लिए भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल। नहीं है। नहीं है। बस एग्जांपल देता हूँ और आपको, SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस गैस के लिए भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लास ये दो एग्जांपल और याद रखो आप अच्छे से, बहुत कॉमन एग्जांपल है, मतलब ये उनके सिग्नेचर एग्जांपल है हेनरीज लॉ के एक्सेप्शन के, राइट। कौन सा, अमोनिया, CO2, SO2 एंड SO3 H2S3 ओके। आपको कुछ पूछना है कोई और चीज टेक्स्ट बुक चैप्टर में से? प्लस हमने देखो, मैंने आपको जो चैप्टर सिखाया डिलीटेड पोर्शन मैंने डिलीट नहीं किया, बिकॉज JEE में वो सब पोर्शन आपको है। तो वी आर लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हाँ, और उससे थोड़ा ज्यादा ही एक्चुअली। तो हमने कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया चैप्टर में से, मतलब चैप्टर कंप्लीट करते वक्त। तो एवरीथिंग वी आर डिस्कस। ओके क्लास, कुछ पूछना है आपको? हाँ ना में आपका आंसर होगा, या हाँ या तो ना। मेरा आवाज नहीं आ रहा? मेरा आवाज आ रहा है, इतना बोलो। Yes sir. ओके हाँ, तो क्लास अगर आपके डाउट्स नहीं है, या फिर एक काम करो, देखो डाउट्स इमीडिएटली आए ऐसा जरूरी नहीं है, आप पढ़ो चैप्टर अच्छे से, प्रिपेयर करो, बीच में डाउट है तो हम लोग बीच में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो MCQs देखते हैं। कुछ चीज़ें हमें नहीं भी सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको मालूम है स्टेट बोर्ड के बुक में सब चीज़ें कवर्ड नहीं है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो क्लास जो सबसे पहले शुरू करते हैं नई चीज़ों से। क्लास एक बीकर में आपके पास वाटर है। क्लास मैं आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा चैप्टर का। ये बीकर में वाटर है, ठीक है। सोल्यूशन है, समझो कितना है सोल्यूशन, 10 ml सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है? 10 10 ml ml 10 उसका ml. मोलारिटी कितना है समझो, 0.1 मोलर। कितना मोलारिटी है? 0.1 मोलर। ये HCl सोल्यूशन है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे बीकर में है 25 ml सोल्यूशन, 0.2 मोलर, वो भी HCl ही है, ठीक है। दोनों भी HCl ही सोल्यूशन है, बराबर। ये भी HCl, ये भी HCl, ठीक है। दोनों को हमने अगर मिक्स किया, प्लस नया सोल्यूशन इसका होगा HCl ही होगा ना, Yes. yes इसमें HCl ही होगा। दोनों को मिक्स किया, सोल्यूशन 1 प्लस, हम दो सोल्यूशन मिक्स करें 1 + 2 प्लस इस सोल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा? तो क्लास सिंपल फॉर्मूला उसके लिए M1 is equals to M2V. M1V1 is equal to M2V2 V1 हाँ equal क्लास plus नहीं M2 होगा, V2. नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, वो फॉर्मूला नहीं होगा, मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला कब होगा। तो क्लास व्हाट इज V1 हियर? 10 ml. 10 ml. ml ml. व्हाट इज M1? 0.1 0.1. व्हाट इज V2? 25 25 ml. एंड व्हाट इज M2? 0.2. 0.2. 0.2 मोलर। तो क्लास जब आप दो सोल्यूशन मिक्स करते हो, तीसरा नया सोल्यूशन बनाते हो, तो क्लास 3 हो गए तो भी चलेगा, 4 हो गए तो भी चलेगा, जितने भी हो, फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं, M1V1 इक्वल टू M2V2 वो भी बताता हूं कब आएगा, ये समझा आपको फॉर्मूला? Yes sir Yes क्लास अगर sir. आपके पास तीसरा भी होता है HCl का सोल्यूशन, तो क्लास M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 plus V2 plus V3 1 plus V2 plus V3. वो फॉर्मूला आता, ठीक है। हाँ क्लास ये नॉर्मलिटी के लिए चलेगा, नॉर्मलिटी के लिए, किसके लिए? नॉर्मलिटी के लिए। Normality. क्लास नॉर्मलिटी में आपको सिखा चुका हूं, राइट? नॉर्मलिटी सिखा है ना, नॉर्मलिटी याद है ना? Yes sir तो क्लास Yes, sir. आपके पास 10 ml सोल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल। कितना है? 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ये समझो HCl है,
प्लस दूसरा सॉल्यूशन आपके पास HCl कितना 10 ml, ठीक है। सो 10, हाँ ठीक है, वो भी वो कितना है 0.2 नॉर्मल। तो प्लस मिक्स किया तो प्लस क्या फॉर्मूला होगा n इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू N1 V1 plus N2 V2 upon V1 plus V2. सेम फॉर्मूला n इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पे बीकर में आपके पास है H2SO4, क्या है आपके पास H2SO4. H2SO4. 4. क्या समझे, अंदर लिखता है H2SO4 0.1 मोलर, कितना 0.1 मोलर एंड 10 ml है। ओके, दूसरे बीकर में आपके पास है HCl 0.1 मोलर, कितना 0.1 मोलर। कितना 0.1 मोलर, कितना है 10 ml। प्लस इसका अगर नॉर्मलिटी पूछा क्या करोगे बोलो आप, नॉर्मलिटी रिजल्ट समझेगा नॉर्मलिटी। सर सेम आएगा ना? सेम आएगा पर क्लास दिया मोलरिटी है, Yes. Yes. दिया तो मोलरिटी आपको। तो ना फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बोलो मोलरिटी इनटू N factor. n फैक्टर। तो प्लस पहले आपको इस केस में मोलरिटी को नॉर्मलिटी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। आप Yes. डायरेक्ट n1v1 प्लस n2v2 ले सकते हैं। तो क्या करोगे प्लस व्हाट इज यहाँ पे n1 कितना आएगा आपका, मोलरिटी कितना दिया है 0.1 दिया, राइट। 0.1. Yes. सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर कितना है 2 है ना। 2. व्हाट इज Yes, n sir. फैक्टर फॉर एसिड, उसके पास कितने H प्लस आयंस होते हैं देने के Plus लिए। ions. H plus ion. H2SO4 gives you 2H plus ions, right। Yes. तो इसका n फैक्टर 2 है तो 0.1 into 2, तो प्लस आपका n1 कितना होगा 0.2 नॉर्मल, राइट। वॉल्यूम का टेंशन नहीं है, वॉल्यूम तो 10 ml ही है। ओके, तो HCl का N factor 1 है. n फैक्टर 1 है, N equal to M. हाँ तो 0.1 into 1, राइट, नॉर्मल। और वॉल्यूम कितना है वो भी 10 ml। 10 ml. नाउ यू कैन यूज n1v1 plus n2v2 upon v1 plus v2, ठीक है एवरीवन। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस हैव यू स्टार्टेड विद चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टार्ट किया आयनिक इक्विलिब्रियम। No, sir. नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ क्लास अभी तीसरा केस देखो कैसा है, हम लोग ना जल्दबाजी में, एक्चुअली ये सब फॉर्मूले बहुत इजी है पर जल्दबाजी होता है इसलिए प्रॉब्लम होता है। प्लस में होता था यहाँ पे आपके सोल्यूशन बीकर में 0.1 या 0.1 मोलर, आप यहाँ पे 0.1 मोलर H2SO4 है, कितना है 0.1 मोलर, क्या है H2SO4 कितना ml है 10 ml, कितना ml है 10 ml। 10 ml. ओके, इसके अंदर डाला मैंने 0.1 मोलर NaOH, क्या डाला 0.1 मोलर NaOH या 0.1 नहीं, चलो तो चेंज कर देना, सेम सेम क्यों 0.05 लेते हैं, चलो 0.05 मोलर NaOH, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिर भी ऐसे कितना लिया हम लोगों ने समझो 20 ml, बराबर है। Yes. बस अभी दोनों को मिक्स किया, व्हाट इज रिजल्टेंट मोलरिटी, फॉर्मूला बोलो रिजल्टेंट मोलरिटी। M1 V1 plus M1 M2 V2 V1 upon plus M1 M2 plus V1 plus V2. Or V1 plus V2. क्लास आप यहाँ पे ने गलती किया, क्लास ये एसिड है और ये Base. बेस है, यहाँ पे दोनों में रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा, Salt plus water देगा. तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो क्लास आपके पास ना एसिड होगा ना, देखिए डिपेंड है तब ये कैसे करेंगे इसको। तो क्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो मोलरिटी पहले काम ही नहीं करता, आपको मोलरिटी नहीं लेना, आपको क्या लेना है पहले नॉर्मलिटी, क्या लेना है नॉर्मलिटी। Normality. Normality. तो क्लास व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, दिस एसिड 0.1 0.1. into 2, बराबर ना। 0.2. नॉर्मलिटी का Yes, फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी इनटू N factor. N factor.
क्लास मैं फटाफट लिख रहा हूँ, चलेगा ना? वो सब नहीं लिखता। Yes, sir. सर Yes, मोलारिटी कंसीडर नहीं करने का, नॉर्मेलिटी क्यों कंसीडर करने का? बताता हूँ, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन में डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड व्हिच रिएक्ट विद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। मैं बताता हूँ, ये कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा किसी, ठीक है? अभी बताओ। तो मुझे बताओ, अगर मैं एसिड लेता हूँ, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? यस yes. कितना ग्राम लेता हूँ? 98 ग्राम लेता हूँ। कितना ग्राम लिया? 98 ग्राम। तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है? वेट अपॉन Equivalent weight. वेट वेट 98 लिया मैंने, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, बराबर है? तो अगर मैं NH लेता हूँ तो क्लास ये कितना हो गया आपका? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? 2 So, तो क्लास अगर 98 ग्राम में 1 लीटर में डिजोल्व करता हूँ, कितना? 98 ग्राम किस में डिजोल्व करता हूँ मैं? 1 लीटर में। तो क्लास इसका मोलारिटी कितना है? 1 मोलार है। कितना मोलारिटी इसका? 1 1 molar. मोलार। और क्लास का नहीं नॉर्मल समझा तो उसका नॉर्मलिटी कितना है? नॉर्मलिटी इसका है 2 नॉर्मल। 2. नहीं समझा सर। डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। 1 लीटर 98 ग्राम इज 1 मोल एंड सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो व्हाट इज मोलारिटी? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ 1। पे। यस सर, समझा समझा। समझा? मोलारिटी 1। व्हाट इज नॉर्मलिटी? मेरे को नहीं। हाँ मैं बता, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्लास अभी क्या है कि ये बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आएंगे यहाँ पे, इसलिए चलो मैं आराम से जाता हूँ, आराम से करते। इफ आई मैं कितना बोला? 49 ग्राम बोला ना, या 98 ग्राम बोला? 98 ग्राम। 98 98 grams. ग्राम। So 98 gram sulfuric acid, right? In 1 liter solution, right? Yes. Okay, इसका मोलारिटी कितना होगा? तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है weight of solute upon molar mass of solute into 1000 upon volume of solution in वॉल्यूम इन ग्राम, ml, ml। या फिर 1 upon volume in liter, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो डायरेक्ट फॉर्मूला से बताता हूँ, ये फॉर्मूला से था। तो इस केस में आपका वेट कितना है 90 सल्फ्यूरिक एसिड का? 98 ग्राम। 98 grams. 98 ग्राम। मोलार मास 98, 98 1 upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। तो क्लास इसका One. मोलारिटी कितना है? 1 मोलार। 1. ओके, now what is formula normally? Normally होता है weight of solute upon equivalent weight of solute into 1 upon volume in liter। ये फॉर्मूला है किसका? नॉर्मलिटी का। तो इसी से नॉर्मलिटी कितना होगा बोलो? weight is 98, equivalent weight of sulfuric acid is, what is equivalent weight? molar mass upon n मोलर factor, right? मास अपन n फैक्टर। 1 upon n factor. molar mass 98 है, n factor 2 है, तो कितना है? 49। 49. 49 1 upon 1। तो क्लास ये कितना हो गया आपका? 2 2. 2. 2। तो क्लास सोलिड उतना ही, राइट? 98 ग्राम, राइट? Yes. तो मोलारिटी 1 Yes, है, तो sir. नॉर्मली कितना है? 2 है, बराबर ना? Yes. बस मैं ऐसे लिख सकता हूँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। into n फैक्टर। Yes. का मोलारिटी कितना था? 1 था। व्हाट इज n फैक्टर One. सल्फ्यूरिक एसिड? 2। तो 1 Two. टू 2 नॉर्मल। 2 2 normal. normal. ये समझा आपको? यस सर। Yes. तो क्लास हाँ, अभी मैं आपने बोला कि नॉर्मलिटी में क्यों लेना, राइट? यस तो क्लास ये जितना पार्ट है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। Gram equivalent. So definition of neutralization is number of gram equivalents of acid react with number of gram equivalents of base, बेस। ठीक है? How many gram equivalents of acid? Plus अगर आपके पास 1 ग्राम equivalent of acid है, कितना है? 1 ग्राम equivalent acid है, राइट? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? 1 ग्राम Base. equivalent base चाहिए, राइट? तो क्लास अगर मेरे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट? तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट? Yes. Yes. वेट कितना दिया आपको? 98 ग्राम दिया, राइट? इक्विवेलेंट वेट कितना? सर 2 आएगा। 2 आएगा, राइट? 2. प्लस आपके पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड हो गया, बराबर है? बेस भी अगर- 2 चाहिए। हाँ, तो बेस भी उसको 2 ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा, राइट? यस Yes. Yes. तो क्लास अगर 1 के लिए 1 बोलना है तो क्लास इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोलारिटी आपके लिए इजी क्या पड़ेगा? नॉर्मलिटी। नॉर्मेलिटी। Normality. तो हमें तो लास्ट सर एक बार फिर से क्या समझाओ बोलो? सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन अपन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हारा बताओ, तुम्हारे पास जो अगर सल्फ्यूरिक एसिड है कितना? 98 ग्राम है, राइट?
98 ग्राम। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 49। 49 तो 49 तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से बोलो 2 2 2 है ना। हो जाएगा। यस। तो प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लगता है वो क्या होता है उसका Gram Basis. equivalent of acid. मतलब दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस लगता है 1 1 1 gram. ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम तो मुझे बताओ अगर मैं 98 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेता 49 ग्राम लेता राइट। तो 49 ग्राम 49 का आंसर कितना आता 1 आता। 1. तो क्लास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इजी पड़ेगा। यस। तो Yes. हमेशा नॉर्मलिटी इजी ठीक है ये छोड़ो टेंशन मत लो। आपको याद रखो कि न्यूट्रलाइजेशन में नॉर्मलिटी से कैलकुलेशन होते हैं मोलरिटी से नहीं होते नहीं होते। क्योंकि एसिड का मोलरिटी और देखो भाई किसी भी एसिड का नॉर्मलिटी ठीक है। Yes. मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड 98 अपॉन अब इसका मोलर ठीक है मैं किसी और तरह से बताओ ठीक है। एक मिनट रुको मैं जरा किसी और तरीके से तब बताता हूँ। तो ठीक है क्लास अभी देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ठीक है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी बेस लगेगा राइट वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लगेगा बोलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Base. बेस। 1 Equivalent ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस राइट। Yes. बहुत सिंपल इससे बता दो। तो हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट अपॉन Equivalent. weight इक्विवेलेंट वेट राइट वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो क्लास अगर आप वेट लोगे इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट तो आपको क्या मिलेगा बोलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा बराबर है Yeah. दोनों सेम लोगे। Yes. इक्विवेलेंट वेट इतना है अगर आपने वेट लिया प्लस व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 राइट Yes. 49 यस। और उसका इक्विवेलेंट तो मैं 49 उसका अगर इक्विवेलेंट वेट है तो अगर मैं 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ तो क्लास मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। यस तो इक्विवेलेंट वेट कौन से इसमें आता है मोलरिटी में आता है नॉर्मलिटी में आता है। Normality. नॉर्मलिटी। तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगा नॉर्मलिटी से करोगे तो Yes, sir. मोलरिटी सर यस सर। हाँ ठीक है सुजाता है मुझसे लग रहा है वेदांत लेटर समझो चलो। हाँ यस सर। बस यहाँ पे Yes, sir. n कितना आपको यहाँ पे m कितना होगा यहाँ पे n 2 2 होगा 2 नहीं 2 नहीं मोलरिटी इज 0.1 into 2 मतलब 0.2 होगा यस 0.2 नॉर्मल होगा राइट और वॉल्यूम तो ये Na हो गया व्हाट इज Na नॉर्मलिटी ऑफ एसिड हाँ, और प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है 10 ml। 10. हाँ क्लास व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ बेस ये बेस तो Na हो चाहिए तो इसका 0.05 into 1 0.05 0.05 into 1 क्योंकि इसका इनफेक्टर 1 है ठीक है तो कितना आ Yes. गया 0.05 और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बेस 20 20 milliliter मिला है। प्लस अभी दोनों मिक्स करोगे तो रिएक्ट होंगे बराबर है। यस Yes. प्लस ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है कैसे पता न्यूट्रल। चलेगा न्यूट्रल है नहीं न्यूट्रल कैसे पता चलेगा इफ Na into Va बताता हूँ ये भी इक्वल टू नथिंग टू डू विद योर VB NaV नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेस बेस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है न्यूट्रल और क्लास इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है हमेशा 7 होता है। 7 एक मिनट बच्चों एक मिनट होगा बच्चों लोग पाला है का एक मिनट हाँ क्लास क्लास अगर हाँ कुठे रे हाँ दिखले ना एक मिनट तू
हेलो सॉरी सॉरी चलो क्लास अगर NaBH ग्रेटर देन NbBH हो तो क्या होगा बोलो सॉल्यूशन इज एसिडिक एसिडिक। एसिडिक तो क्लास उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कौन सा किस उसमें सॉल्यूशन में कौन से आंसर होंगे H+ आंसर होंगे OH आंसर होंगे H+ ज्यादा रहेगा। H प्लस ज्यादा तो ज्यादा होंगे तो क्लास H+ का कौन सा होगा NaBH माइनस NbBB अपॉन Va प्लस VB। क्लास ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन में ऐसा होगा तो। सर नहीं समझे वाला, नहीं फॉर्मूला नहीं समझा। सर नहीं, ये H नहीं। वो H+ का मतलब कितने H+ आयन प्रेजेंट है वो है क्या? पता चलेगा, हाँ H+ आयन का कौन सा है पता चलेगा, राइट। यस सर। सर पीएच वैल्यू बता, नहीं समझा सर। पीएच फाइंड, पीएच छोड़ो, पीएच कैसे होता है सॉल्यूशन, पीएच हम लोग को चैप्टर ना सीखना है, कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम, वहाँ पे आ जाएगा ये पार्ट। अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखो, मैं बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है, जब ये चैप्टर सीखेंगे या कोई दूसरा टीचर सीखेगा तो भी आपको पता चलेगा। अगर ऐसा होगा NaVA लेस देन NbBB बेसिक Basic. तो आपके सॉल्यूशन में OH आयन ज्यादा होगा, राइट। OH आयन ज्यादा है। तो इसका कौन सा होगा NbBB माइनस NaVA अपॉन प्लस NaVA अपॉन VA प्लस VB प्लस। ये वाला मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए JEE में ये सब पार्ट भी होता है, ठीक है, पर ये वाला पार्ट बहुत कॉमन है। कौन सा, ये, हाँ। अगला 1-2 मिनट में आपका और लूंगा मैक्सिमम। प्लस आपके पास बीकर में 90 ml वाटर, 90 ml सोल्यूशन, कितना है सोल्यूशन है 90 ml, कितना है 0.1 मोलर, कितना है 0.1 मोलर। प्लस में आपने पानी डाला कितना 10 ml, तो बस मोलारिटी सेम रहेगा चेंज होगा बोलो, चेंज होगा। मोलारिटी चेंज होगा ना, पानी डाला आपने, व्हाट इज कॉन्संट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम चेंज कर रहे हो ना सोल्यूशन का। यस सर। हाँ, तो बस मैं ऐसे में काम करता हूँ इसको, लेट अस कॉल दिस एज M1, ठीक है, और ये क्या बोलता हूँ मैं V1। तो आपने 10 ml क्या डाला, पानी वाटर डाला ना, हाँ। यस। बस माय क्वेश्चन व्हाट इज M1 वैल्यू 0.1, 0.1 व्हाट इज V1 वैल्यू 90 व्हाट इज V2 वैल्यू 100 100, वेरी गुड 100 ना, क्यों 100, यस yes ऐड हुआ है, एंटी में 10 ऐड हुआ है। पहले 90 था, अभी हमने ऑल 10 डाला, राइट, तो 100 हो गया। यस yes व्हाट इज M2 वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फॉर्मुलाइज करो M1 V1 इज इक्वल टू M2V2 यहाँ पे कर सकते हो आप जब पानी डालते हो तब, ठीक है। प्लस ये फॉर्मूला नॉर्मली के लिए भी चलेगा, क्या चलेगा N1 V1 इक्वल टू N2V2 अगर सॉल्यूशन में दोनों का नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो। आर यू क्लियर? yes अगर sir H2 की जगह दूसरा ऐड कौन सा किया तो? दूसरा मतलब नहीं, ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनता ना, अब दो एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, दो सॉल्वेंट नहीं चलते। सर मतलब सेम सॉल्वेंट रहना चाहिए तभी फार्मूला हाँ, वैलिड। तभी ये फॉर्मुलाइज करेंगे। और दूसरा sir. ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, मतलब ऐसा कोई, मतलब वो हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। यस सर। वाटर नहीं, सॉल्वेंट कोई भी चलेगा, बस सॉल्वेंट सेम ही डालना पड़ेगा आपको, तभी ये फॉर्मूला चलेगा। कौन सा M1 V1 इज इक्वल टू M2V2 प्लस, या फिर आप बोल रहे हैं वो कंडीशन हाइपोथेटिकल, उसमें दोनों सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी सेम चाहिए, यस सर समझा। तो फिर वो थोड़ा मतलब वो मतलब अनवांटेड केस है वो, मतलब अननेसेसरी केस है, ठीक है। यस ठीक है, तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आप डाउट्स निकाल के रखो आपके जो भी होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। yes sir ओके, बाय एवरीवन।